A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy, that is a petty cash book. You know very well in the last three videos, we already discussed a very important topic of class 11th accountancy, that is a subsidiary book. You know very well when the size of the business is very large as well as the number of transactions of the organization increasing day by day. So in this situation, all the transaction cannot be recorded in the journal. That's why company prepared and moved to the preparation of subsidiary book instead of the journal. That's why you know very well the subsidiary book include the few of the important book, that is a cash book, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, and journal proper. We are talking about the cash book, so you know very well in your syllabus there are basically three types of the cash book, that is a single column cash book, double column cash book having cash in bank column, and number third is a pt cash book. So today we complete the third type of the cash book. So after discussing the petty cash book, we almost complete the first subsidiary book, that is a cash book. And you know very well the cash book record all the cash receipts and cash payments. Either we are talking about the single cash book or double column cash book. So first of all, what is petty cash book? What are the uses of petty cash book? Which types of the system followed under the petty cash book? Let's we discuss it. And thereafter, what is the format of petty cash book? Let's we discuss it. So what is petty cash book? So please note down in your copy. Petty cash book. So what is petty cash book? It is the book which is used. It is the book which is used for the purpose of for the purpose of recording for the purpose of recording of petty cash expense. Petty cash expense. And what is petty cash expense? यू नो वेरी वेल बिजनेस में कई एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही हाई लेवल के एक्सपेंस होते हैं, वो जो बार बार होते हैं. पीटी मतलब रेकरिंग, हाईली रेकरिंग नेचर के एक्सपेंस. सो if we are talking about the what is petty cash book expense, it means highly recurring expense for small amount. यानी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं बिजनेस में जो हाईली रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो बिजनेस में बार बार होते हैं. इनका नेचर हाईली रेकरिंग नेचर का, यानी बार बार इस तरह के खर्चे बिजनेस में होते रहते हैं. और इनके अमाउंट्स भी काफी बड़े नहीं होते, जैसे 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 5 रुपीज, 20 रुपीज. So such kind of the expense will be recorded in the petty cash book instead of the main cash book. और इसके लिए स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट कैशियर इज अपॉइंटेड, दैट इज अ पीटी कैशियर. सो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द पीटी कैश एक्सपेंस? सो अगर हम पीटी कैश एक्सपेंस के अगर हम आपको थोड़े से एग्जांपल लें तो हम वी कैन सी दैट दैट इज द एक्सपेंस रिलेटेड टू द रिफ्रेशमेंट, expense related to the postage, expense related to the convenience. So these kind of the expenses are beared by the business organization at highly recurring nature. यानी इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो बिजनेसमैन बार बार बियर करता है. जैसे अगर उसे किसी भी तरह का पोस्टेज करना है तो यू नो वेरी वेल पोस्टेज की वैल्यू बहुत कम होती है, लीस्ट वैल्यू होती है. उसे कोई ऑर्डर पोस्ट करना है या ऑर्डर रिसीव करना है, उसका कोई रिप्लाई करना है, सो ही बियर द लार्ज टाइप्स ऑफ द पीटी एक्स कैश एक्सपेंस. पीटी कैश एक्सपेंस मींस हाईली रिकरिंग एक्सपेंस फॉर स्मॉल अमाउंट. यानी जो वे एक्सपेंस जो हाईली रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो बिजनेस में कई बार होते हैं और इनके अमाउंट्स, इनका जो पेमेंट्स की वैल्यू होती है वो काफी लीस्ट होती है. And the very important part is PT cash book for maintaining PT cash book
पीटी कैशियर इज अपॉइंटेड। ये बात आपको याद रखना है कि पीटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए एक सेपरेट पर्सन की जरूरत होती है, सेपरेट मैन पावर की जरूरत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज पीटी कैशियर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि बिजनेस में जो भी पीटी कैश एक्सपेंस हो रहे हैं, बिजनेस में जो भी हम छोटे छोटे खर्चे कर रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट बुक बनाइए, और सेपरेट बुक को मेंटेन करने की जिम्मेदारी एक सेपरेट कैशियर की होगी, और कैशियर का नाम होगा दैट इज पीटी कैशियर। So our next topic is system of PT cash. Okay, the next is system of PT cash. So please note down in your copy. If we are talking about the PT cash book, so they are basically very important system, that is a system of PT cash book. So the system of PT cash book is totally depend on the impress system. Impressed system. So sometime in the examination, examiner will be asked to you, that is what is the impress system of PT cash book. It means impress system PT cash book के recording impress system की क्या भूमिका है, what is the role of the impress system under the PT cash book, let's we discuss it. ये system होता क्या है basically? impress system जो होता है वो PT cashier से related होता है, जिसे हम PT cash book prepare करते समय अपने mind में रखते हैं। तो इस सिस्टम का मेन पॉइंट क्या होता है, प्लीज नोट डाउन। अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम अ डेफिनेट सम इज गिवन टू पीटी कैशियर। यू नो वेरी वेल, पीटी कैश बुक के लिए हम किसको अपॉइंट करते हैं, पीटी कैशियर को। और पीटी कैश बुक के इंप्रेस सिस्टम में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डेफिनेट सम अमाउंट, एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर अमाउंट हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं टू द पीटी कैशियर। ओके, डेफिनेट सम इज गिवन टू द पीटी कैशियर, एंड आफ्टर दैट you know very well, the PT cashier goes on making all small payments out of डेफिनेट सम, यानी जो उसको पैसा मिलता है उस पैसे में से वो क्या करता है, पूरे महीने या पूरे पीरियड, पूरे डेफिनेट पीरियड में वो क्या करता है, खर्चे करता है। सो पीटी सिस्टम ऑफ पीटी कैश में जो इंप्रेस सिस्टम ऑफ पीटी कैश बुक होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक डेफिनेट सम अमाउंट पीटी कैशियर को प्रोवाइड करते हैं। जैसे जनवरी 1 को मैंने अपने पीटी कैशियर को 1000 रुपीज पे किया इन एडवांस, कि जनवरी मंथ के जितने भी एक्सपेंस हैं यू विल बियर फ्रॉम आउट ऑफ द रुपीज 1000, यानी 1000 रुपए में से आप पूरे एक्सपेंस को बॉर्न करो, मैनेज करो। सो 1000 रुपीज मैंने जनवरी 1 में दिया। अब वो क्या करेगा, जनवरी 1 से लेकर जनवरी 31 तक बिजनेस के जितने भी पीटी कैश एक्सपेंस होंगे, लाइक स्टेशनरी, पोस्टेज, कन्वीनियंस, entertainment, refreshments, जो भी expenses हैं, stationery, all the expenses will be borne by the PT cashier out of the 1000. तो suppose उसने 850 रुपीज पूरे एक महीने में एक्सपेंस कर दिए, उसको PT कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। सो एट द एंड ऑफ द जनवरी 31, यू नो वेरी वेल, उसके पास कितना बैलेंस बचा, दैट इज 150 रुपीज। तो जो 150 रुपीज है ये बैलेंस है, यानी इसका मतलब जब फरवरी 1 में हम जब उसको फिर मंथली एक्सपेंस के लिए 1000 पे करेंगे तो 1000 नहीं पे करेंगे। इस सिचुएशन में 150 तो उसके पास ऑलरेडी है, अब इस महीने हम उसको कितना पेमेंट करेंगे, दैट इज 850। तो नाउ इस महीने भी उसका इंप्रेस्ड वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 1000। जो हम डिफरेंट सम देते हैं ना, डिफरेंट सम विल बी नोन एज द इंप्रेस्ड अमाउंट, यानी वो वैल्यू जो पहले से डिटरमाइंड होती है कि हम हर महीने हर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए पीटी कैशियर को एक डिफरेंट सम वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा।
So you can see that what is PT impress system of the PT cash book. Under this system, a definite sum amount, that is impressed amount, is given to the PT cashier. The PT cashier goes on making on all small payment out of the definite sum for specified period. मतलब वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए क्या करेगा, वो सारे स्मॉल पेमेंट्स बियर करेगा. जैसे आपको मैंने एग्जांपल प्रोवाइड किया कि सपोज जनवरी 1 को मैंने अपने पीटी कैशियर को 1000 रुपीज दिया, कहा कि जनवरी मंथ के जितने भी छोटे छोटे खर्चेज हैं यू विल मैनेज इट फ्रॉम द 1000. उसने जनवरी 1 से जनवरी 1 तक, जनवरी 31 तक उसने 850 रुपीज एक्सपेंस किए एज अ पीटी एक्सपेंस. 150 रुपीज उसके पास बैलेंस है. नाउ यू नो वेरी वेल हमें उससे हर महीने 1000 रुपीज बिजनेस के पीटी एक्सपेंस के लिए पे करना है. So now we will pay 850 rupees for the next month, that is the February. फिर वो February में उसके पास 1000 हो गया, 150 पहले का, 850 इस बार मैंने उसको दिया. So now फिर वो ये 1000 रुपीज में February में सारे पीटी एक्सपेंस को बियर करेगा. फिर कुछ पैसा बचेगा तो नेक्स्ट मंथ उसी में एडजस्ट होता जाएगा. So this will be system known as the impress system of PT cash book. Okay. So अब आपके मन में आ रहा होगा सर what are the benefits of the preparation of the PT cash book? So let's we discuss it. If you are talking about the advantage of PT cash book, so you can see that with the help of the impress system as well as the PT cash book, क्योंकि बिजनेस में छोटे छोटे खर्चे इतने ज्यादा होते हैं कि हर ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में रिकॉर्ड करने से कैश बुक काफी लेंदी हो जाती है. दैट्स वाई बिजनेस के जो छोटे छोटे खर्चे हैं और जो स्मॉल पेमेंट्स हैं उनके लिए अलग से बुक बना देना इट इज अ वेरी कन्वीनियंट. और यू कैन सी दैट छोटे छोटे एक्सपेंस ही क्या करते हैं, बिजनेस की कैश बैलेंसेस को इफेक्ट करते हैं. दैट्स वाई इम्प्रेस सिस्टम के आने से एक छोटे छोटे खर्चों पे कंट्रोलिंग एस्टेब्लिश की जाती है. यानी कि हम कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकते हैं पीटी एक्सपेंसेस पे, हम अपने पीटी एक्सपेंसेस पे कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं और इन पे हम उतना ही एक्सपेंस करते हैं पीटी कैशियर के थ्रू जितना वाजिब हो, जितना कि रिलायबल हो, जितना रिलेवेंट हो. सो पीटी कैश बुक की क्या क्या एडवांटेज है, सो लेट्स वी डिस्कस इट. सो एडवांटेजेस of PT cash book. So what are the advantages of PT cash book? So first one is the saving of time. As you can see that time की save होता है. Number second is effective control over cash. Effective control over cash. कैश पे एक इफेक्टिव कंट्रोल एस्टेब्लिश होता है, स्पेशली फॉर द स्मॉल पेमेंट्स. जो एक्सपेंस स्मॉल पेमेंट्स के होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश हो सकता है. यू कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ द इम्प्रेस सिस्टम. नंबर थर्ड इज कन्वीनियंट रिकॉर्डिंग. जैसे मैंने आपको बताया ना, ऑल द एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, क्योंकि बिजनेस में कितने छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं कि सबको कैश बुक में रिकॉर्ड करना कन्वीनियंट नहीं होगा. ठीक, हमने सब्सिडी बुक इसलिए ही बनाई है ताकि हमें रिकॉर्डिंग में कन्वीनियंट रहे, क्योंकि बिजनेस में इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और उसके बाद फिर हम कैश बुक में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने लगे, चाहे वो बड़े अमाउंट्स हो, चाहे वो छोटे अमाउंट्स हो, चाहे वो रेकरिंग नेचर के हो, चाहे वो नॉन रेकरिंग के. अगर हाईली रेकरिंग अमाउंट स्मॉल पेमेंट्स को भी रिकॉर्ड करने लगेंगे तो कैश बुक की साइज लेंदी भी हो जाएगी, टाइम टेकिंग भी हो जाएगी, कंफ्यूजिंग भी हो जाएगी, कन्वीनियंट भी नहीं रहेगा. सो दैट्स वाई हमारा जो पर्पज है सब्सिडी बुक का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. दैट्स वाई these are the three benefits, these are the three advantage of PT cash book, that is the saving of time as well as the effort of cashier. and इसमें आप टाइम की तो सेविंग होती है, साथ साथ कैशियर की जो एफर्ट्स है उसमें भी कहीं ना कहीं सेविंग देखने को मिलता है. So saving of time and efforts of cashier, effective control over cash, and number third is a convenient recording. Okay. The next and very important part of the PT cash book, that is a format. So please note down the format in your copy properly. What is the format of PT cash book? So when we prepare the PT cash book, so first of all we write down the name of the PT cash book on the top of the solution of the question, and it will be recorded as follows. The first will be a known as the, प्लीज बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि जो पीटी कैश बुक होती है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि उसमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन नहीं रहता.
So as you can see that on your screen, the format of PT cash book. So you can see that the first column of the PT cash book is amount received. यानी the first column of PT cash book is the amount received, जितना पैसा आपको मिला. The second one is the cash book folio. Third one is the date. Fourth one is the particulars. Fifth one is the voucher number, and last one is the total payments. बेसिकली जो PT कैश बुक होती है उसमें 1 2 3 4 5 6 ही कॉलम होते हैं, जिसमें अमाउंट रिसीव होती है तो वो अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में अमाउंट रिकॉर्ड होती है, और पेमेंट्स होता है तो उसे हम लोग इस वाले वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं. एंड आफ्टर दैट जो यू कैन सी दैट 1 2 3 4 5 एडिशनल कॉलम आपको जो दिख रहे हैं, इट विल बी नोन एज द एनालिसिस ऑफ पेमेंट. यानी जो पेमेंट्स हम करते हैं पीटी कैश बुक में, उस पेमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हम बेसिकली पेमेंट्स का एनालिसिस करते हैं कि दिस पेमेंट इज रिलेटेड टू द विच कैटेगरी. द फर्स्ट कैटेगरी विल बी नोन एज द पेमेंट इज द पोस्टेज. कि पोस्टेज से रिलेटेड कितना खर्चा है, टेलीफोन से रिलेटेड कितना खर्चा है, दैट इज अ कम्युनिकेशन चार्जेस. एंड कन्वीनियंस से रिलेटेड कितना खर्चा है, एंड स्टेशनरी से रिलेटेड कितना खर्चा है. So you can see that. And number 5 is the miscellaneous expense. So if we are talking about the PT cash book, so you can see that they are basically 1 2 3 4 5 6 column and additional 5 column of the PT cash book. So basically there are 11 column in the PT cash book. देखने में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट अगर हम आपको बताएं PT कैश बुक की यूटिलिटी इतनी अच्छी है कि इसमें हम पर्टिकुलर्स का सिर्फ एक कॉलम होता है. जनरली कैश बुक में यू कैन सी द 2 कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स एंड 2 कॉलम ऑफ अमाउंट. जैसे अमाउंट रिसीव का कॉलम एंड पेमेंट का कॉलम तो अवेलेबल है, बट डेट का कॉलम सिंगल है, पर्टिकुलर्स का कॉलम सिंगल है, कैश बुक फोलियो का भी कॉलम सिंगल है. बेसिकली अगर हम पीटी कैश बुक की बात करें तो उसमें पैसा एक दो बार ही मिलता है. जैसे कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पीटी कैश बुक, जैसे लास्ट मंथ में आपका 150 रुपीज बच गया, और इस महीने आपको 850 रुपीज और आपके मेन कैशियर ने आपको प्रोवाइड किया फॉर द फॉर द इनकरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पीटी कैश बुक ऑफ फॉर स्मॉल पेमेंट्स. सो उन सब चीजों को हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं. तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डेट को वैसे यू नो वेरी वेल, ईयर, मंथ, date, and if there is an opening balance in PT cash book, जैसे अगर previous month का कोई पैसा बचा है, so it will be shown in the amount received column as a to balance BD. Suppose आपके main cashier ने आपको कुछ पैसा दिया, so it will be taken as to cash and amount किसमें लिखेंगे, amount received column. और अगर आप कोई पेमेंट्स करते हो तो by एक्सपेंस का नाम, टोटल एक्सपेंस इस कॉलम में, और वो एक्सपेंस किस कैटेगरी से रिलेटेड. जैसे अगर आपने पेंसिल परचेस की, सो बाय पेंसिल, और पेंसिल इज रिलेटेड टू द स्टेशनरी, तो उसको हम लोग किसमें रिकॉर्ड करेंगे, स्टेशनरी. सपोज यू पे द टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन बिल पे करोगे तो इस सिचुएशन में टोटल पेमेंट तो यहाँ लिखोगे ही लिखोगे, साथ ही साथ उसका एक्सपेंडिचर किसमें जाएगा, टेलीफोन में. सो आप एक तरह से एनालाइज भी कर सकते हो इजिली कि आपका जो एक्सपेंस है पोस्टेज में कितना हो रहा है, यानी टोटल पेमेंट्स में कितना पोस्टेज से रिलेटेड है, कितना टेलीफोन से रिलेटेड है, कितना कन्वेंस से रिलेटेड है, कितना स्टेशनरी से रिलेटेड है, और कितना अदर मतलब मिसलेनियस, मतलब जो ना पोस्टेज, टेलीफोन, कन्वीनियंस, स्टेशनरी किसी में भी कवर नहीं होता, उसे हम मिसलेनियस एक्सपेंस में क्राइटेरिया पे इंक्लूड करते हैं. So this is the format of petty cash book, as you can see that. Okay. अब हम कुछ एग्जांपल आपको ले लेते हैं और इसमें समझाते हैं आपको, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि पेटी कैश बुक की यूटिलिटी क्या है. फॉर्मेट आपके सामने है, इसी फॉर्मेट में वी कैन टेक द फ्यू एग्जांपल टू create a better understanding regarding the petty cash book. So please note down the question. The question is January 2010, January 1. Petty cash balance, that is rupees 100,000. Cash received from कैशियर, यहां हम किसकी बात करें, पीटी कैशियर को कितना कैश रिसीव हुआ कैशियर से, दैट इज 2000. सो वी एनालाइज दैट कि पीटी इंप्रेस्ड अमाउंट कितनी होगी, 3000, क्योंकि 1000 पहले से बचा था, 2000 पीटी कैशियर ने दिया. सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंप्रेस्ड.
इंप्रेस्ड अमाउंट कितनी होगी? सो यू नो वेरी वेल द 3000, बिकॉज 1000 हमारे पास पहले से था, 2000 रुपये हमने किसने दिया? कैशियर ने दिया। उसके बाद जनवरी 5, जनवरी 7, ठीक, मैं दो एक्सपेंस ले लेता हूं। सपोज यू पोस्टेज 500, बस फेयर 1000। तो ये चार ट्रांजेक्शन आपके सामने हैं। विद द हेल्प ऑफ द अबव 4 ट्रांजेक्शन वी हैव टू प्रिपेयर अ पीटी कैश बुक। देखो कितना सिंपल सा है। इस चार ट्रांजेक्शन से आपको क्या प्रिपेयर करना है? पीटी कैश बुक। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? पीटी कैश बुक का फॉर्मेट बना दोगे। यस सर। पीटी कैश बुक का फॉर्मेट यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल पीटी कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1000। तो जनवरी 1 2010, जनवरी 1 में यू राइट द टू बैलेंस बीडी। अमाउंट पहले से है 1000, तो अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में लिखोगे, पेमेंट वाले में नहीं। उसके बाद आपको कैश मिला कहां से? कैशियर से। टू कैश, सेम डे कितना कैश मिला? 2000। ओके, एंड द जनवरी 5 एंड जनवरी 7, जनवरी 5 में एंड जनवरी 7 में आपने एक्सपेंस पे किया, तो पोस्टेज को किस नाम से शो करोगे? बाई पोस्टेज। एंड बस फेयर को बाई बस फेयर। और ये पेमेंट मिला नहीं है, आपने पेमेंट किया है। पोस्टेज का कितना पेमेंट किया है? 500, सो पेमेंट साइड में। एंड बस फेयर का कितना? 1000। एंड यू नो वेयर पोस्टेज इज रिलेटेड टू द पोस्टेज, वेयर द बस फेयर इज रिलेटेड टू द कन्वीनियंस। तो बाकी सब में डैश करो ना करो, इट इज डिपेंड ऑन यू। तो आपने देखा कि 500 रुपए हमने टोटल पे किया है, तो किससे रिलेटेड पे किया है? पोस्टेज से। तो सर क्या यहीं पे खत्म हो जाएगा पीटी कैश बुक? नो। जैसे हम बाकी कैश बुक का बैलेंस करते हैं, टोटल करते हैं, उसी तरह से इसका भी टोटल में बैलेंस करते हैं। तो अगर आप देखो तो टोटल रिसीव्ड कितना हुआ है? 3000, बट आपने पेमेंट कितना किया है? 1500। तो आपके पास अभी भी बैलेंस कितना है एट द एंड ऑफ द मंथ? सो इट विल बी शोन एज अ जनवरी 31, दैट इज 1500। बैलेंस निकल गया? यस सर। और एट द एंड ऑफ द मंथ आप क्या करोगे? यू विल टोटल और द ऑफ द पीटी कैश बुक। तो अगर आप टोटल करो, यू कैन सी दैट कि अमाउंट कितनी रिसीव हुई? 3000। पेमेंट साइड का भी टोटल कितना हुआ? 3000। बैलेंस कितना है? दैट इज 1500। पोस्टेज का टोटल 500, टेलीफोन 0, 1000। ओके, सो दैट इज अ 1500। क्योंकि ये आपको याद रखना है, अमाउंट रिसीव, टोटल रिसीव्ड और टोटल पेमेंट्स का जो हमेशा टोटल हो वो इक्वल होना चाहिए। तो ये बैलेंस है। अब ये नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी के लिए यही 1500 रुपए क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। और इस बार हमें कैशियर कितना देगा? 1500, क्योंकि पहले से हमारे पास 1500 है, 1500 रुपए और कौन देगा? कैशियर देगा। सो दिस इज अ पीटी कैश बुक। सो यू कैन सी दैट इन द पीटी कैश बुक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? इन द पीटी कैश बुक फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज पीटी कैश बुक, what are the purpose of PT cash book, which types of the system followed in the PT cash book, that is the impress system of PT cash book, and what are the advantage of the PT cash book, that is the saving of time and efforts of the cashier, convenience in recording, as well as we discuss what is the format of the PT cash book, and we take the one small question for creating a better understanding regarding the PT cash book. ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हमने नहीं लिया, छोटा सा क्वेश्चन लिया और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पीटी कैश बुक का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बिजनेस में जो छोटे छोटे खर्चेज हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको मेन कैश बुक में रिकॉर्ड ना करके उनके लिए एक अलग से कैश बुक बनाना, दैट इज अ पीटी कैश बुक। ओके, so let's we move to the next topic of subsidiary book. You know very well we discussed the first type of the subsidiary book, that is a simple cash book. In the that is cash book, and the cash book we discussed the three types of the cash book, that is a simple cash book, double column cash book having cash and bank column, and last one is the PT cash book. And thereafter we discussed the second type of subsidiary book, that is a purchase book. So please note down in your copy what is a purchase book. So now our topic is purchase book. Okay,
what is purchase book? In short, we can say that the book which records only, it records only credit purchase of goods, यानी इस पे हम सिर्फ गुड्स के परचेस को रिकॉर्ड करते हैं, वो भी किस तरह के परचेस ऑफ गुड्स को? क्रेडिट. इट मींस इट डज नॉट रिकॉर्ड, number one, cash purchase of goods, and number two, purchase of assets, that is a tangible and intangible. Okay, so basically what is the purpose behind the preparation of purchase book? So you can see that purchase book record only credit purchase of goods, यानी purchase book में सिर्फ हम credit purchase of goods को रिकॉर्ड करते हैं. यानी अगर हमने कोई गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे, उधार पे अगर हमने कोई गुड्स परचेज किया तो उसको हम लोग परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे. और कौन कौन सी चीजें परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी? इट डज नॉट रिकॉर्ड कैश परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट. सपोज अगर हमने कोई फिक्स एसेट परचेज की फॉर द प्रोडक्शन पर्पस एंड फॉर द सर्विस टेकिंग पर्पस, फॉर एग्जांपल लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, computer, motor vehicle, goodwill, patent, copyright, so it will be not recorded in the purchase because it is categorized under the fixed assets. तो अगर हम एसेट्स परचेज करते हैं, चाहे कैश में करें चाहे क्रेडिट में करें, तो उसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. और अगर हमने कैश परचेज ऑफ गुड्स कर दिया, सो इट विल बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक. तो बेसिकली परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा. कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ एसेट्स विल बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक, and credit purchase of assets, fixed assets, whether it is a tangible or intangible, it will be recorded in the journal proper. So I hope it is clear for you. So the next step, sir, what is the format of purchase book? So you please see it. The format of purchase book are as follows. In today's class we almost discussed the what is petty cash book and what is a purchase book. In the next class we are moving to the practical questions related to the petty cash book and purchase book. So please do not take any kind of tension कि सर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं कराया आपने. तो क्वेश्चन हम कराएंगे, पहले हम आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड कर देंगे. बेसिकली परचेज बुक में भी पेटी कैश बुक की तरह थोड़ा इसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है कैश बुक से. इसमें द फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकेंड कॉलम related to the particulars. In the particulars we note down the name of supplier. It means हम कहां से गुड्स को परचेज कर रहे हैं, उनका नेम यहाँ पे राइट डाउन किया जाता है. द नेक्स्ट वन इज अ इनवॉइस नंबर. यू नो वेरी वेल, जब हम परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो वी गॉट अ परचेज इनवॉइस नंबर. द नेक्स्ट कॉलम इज डिटेल. नेक्स्ट कॉलम इज अ परचेज. Okay, and thereafter you know very well today in our country there is a application of the GST. That's why मैंने आपको GST पहले पढ़ाया है बाकी सब्सिडी बुक स्टार्ट करने के बाद, जैसे कैश बुक हो, परचेज बुक हो, पेटी कैश बुक हो. तो यू नो वेरी वेल कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिन पे हम GST भी पे करते हैं. तो यू नो वेरी वेल जब हम परचेज करते हैं तो वी पेड द GST, एंड जब व्हेन वी पेड द GST इट विल बी नोन एज द इनपुट GST. इसीलिए मैंने आपको ये रिकमेंडेशन किया था कि बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द सब्सिडी बुक, आइदर इज अ कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जनरल प्रॉपर, वी हैव टू सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो उसमें मैंने आपको आउटपुट GST, इनपुट GST, आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट GST, दैट इज इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, सबके बारे में डिटेल में आपको नॉलेज प्रोवाइड की है. बिकॉज उसके बिना आप परचेज बुक विथ GST नहीं बना सकते. और मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन क्वेश्चन एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द क्रिएशन ऑफ द परचेज बुक विथ GST कॉलम. पहले जो परचेज बुक का कॉलम इतना ही था, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, डिटेल, अमाउंट, दैट इज अ परचेज. बट नाउ अब थोड़ा सा चेंज हो गया है.
अब क्या हो गया है, यू नो वेरी वेल, जब हम परचेस करते हैं तो वी पेड द जीएसटी। अगर विद इन स्टेट से परचेस करते हैं तो वी पेड द CGST and SGST. It will be termed as input CGST and input SGST. If we paid the GST if we purchase from the outside the state, अगर हम स्टेट के बाहर से अगर हम गुड्स परचेस करते हैं तो वी पेड द इनपुट IGST. And the last column is total. Suppose we purchase of goods of 10,000 जिस पे GST 8% है, तो 10,000 800 800 11,600. आउटसाइड द स्टेट से परचेस करें 10,000, तो मान लो 16% है तो 10,000 8 8 16%, that is 1,600, तो 11,600 will be write down the total column. बाकी सारी चीजें सेम है. परचेस बुक का फॉर्मेट आपने देख ही लिया है कि हाउ वी विल प्रिपेयर द परचेस बुक फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, एंड you can see that how we will prepare the purchase book by the with GST और without GST. अगर क्वेश्चन में GST गिवन है तो हमारा फॉर्मेट सिर्फ यहीं तक लिमिट रह जाएगा, और अगर क्वेश्चन में GST is given so we prepared 4 additional column for the preparation of the purchase book, that is input CGST and input SGST. जब हम विद इन स्टेट परचेस करें, और इनपुट IGST कब चार्ज होगा, जब हम आउटसाइड स्टेट अगर हम गुड्स परचेस करते हैं. अगर स्टेट के बाहर से गुड्स परचेस करते हैं तो इनपुट IGST पे करते हैं. स्टेट के अंदर से अगर हम परचेस करते हैं तो हम इनपुट CGST इनपुट SGST पे करते हैं. टोटल मींस परचेस वैल्यू प्लस GST इक्वल्स टू द टोटल. ओके, सो अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, इफ यू फील doubtful, so please I request to you all the students, please see the video of dated 9 सितंबर का वीडियो जरूर देख लो सब लोग. उसमें GST के बारे में मैंने प्रॉपर आपको सफिशिएंट नॉलेज प्रोवाइड की है, जिससे आपको परचेस बुक, सेल्स बुक विथ GST और विदाउट GST प्रिपेयर करने में कंफर्टेबल रहे. ओके, सो टुडे वी डिस्कस द 2 इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बुक of the subdivided of general, that is a petty cash book and purchase book, and I hope today we discussed all the topics very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.